بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدہ کی کہانی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عرب کے کسی شہر میں ایک سونار رہتا تھا۔ اس کی عورت ایک روز پانی بھرنے کنویں پر گئی۔ ایک شور اٹھا کہ سونار کا لڑکا کمہار کے جلتے ہوئے بھٹی میں گر گیا ہے۔ وہ سونارنی اس قدر روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوشی کے حالت میں اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں سونارنی سے کہ اے عورت، تو منت مان لے کہ میرا لڑکا کمہار کے جلتے ہوئے بھٹی سے صحیح سلامت نکل آئے گا تو میں جناب سیدہ کی کہانی سنوں گی۔ اتنے میں ایک طرف سے شور اٹھا کہ سونار کا لڑکا کمہار کے جلتے ہوئے بھٹی سے زندہ اور صحیح سلامت نکل آیا ہے۔ سونارنی کے بے ہوشی کے حالت سے آنکھ کھل گئی تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کا لڑکا سامنے کھڑا ہے اور وہ اسے اپنے گھر لے آئی اور بازار سے 2 پیسے کی شیرنی خرید کر اپنے پڑوسیوں کے پاس گئی اور کہا کہ چلو میرے گھر، میں نے جناب سیدہ کی کہانی سننے کے لیے منت مانگی ہے، آپ سبھی ہمارے گھر چلو، جناب سیدہ کا کہانی سننا ہے۔ سب عورتوں نے اسے منع کر دیا تو وہ روتی ہوئی مایوس ہو کر جنگل کی طرف چلی گئی۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے دیکھا نقاب پوش بی بی کو دیکھا کہ انہوں نے فرمایا بیٹھ جا، میں کہانی سناتی ہوں۔ نقاب پوش بی بی نے سونار کی عورت کو کہانی سنانے لگی اور بتانے لگی، سن، مدینے میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مولا میری لڑکی کی شادی ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو جناب سیدہ میرے گھر تشریف لے جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ذکر جناب امیر سے کرو، اگر وہ اجازت دیں تو فاطمہ کو لے جاؤ۔ اور یہودی حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی درخواست پیش کی۔ حضرت نے فرمایا کہ جناب سیدہ کی خدمت میں عرض کرو۔ چنانچہ وہ حضرت فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارشاد میں شرکت کے لیے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا علی مرتضیٰ سے اجازت لو تب میں چلوں گی۔ یہودی نے عرض کیا، میں جناب رسول خدا اور جناب علی سے اجازت حاصل کر چکا ہوں، اب تو آپ ہی خود اس امر کی مختار ہیں۔ آپ نے سواری لانے کے لیے اس کو کہا۔ یہودی سواری لینے چلا گیا۔ جناب سیدہ نے نماز بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے پالنے والے، میں تیرے رسول کی بیٹی اور تیری کنیز ہوں، نہ میرے پاس کوئی کپڑا ہے اور نہ کوئی سامان ہے،
ऐसी हालत में मैं शादी में कैसे जा सकती हूँ। अभी दुआ खत्म न होने पाई थी, तभी जन्नत की हूरें एक कश्ती में जन्नत की जेवरात व लिबास लेकर हाजिर हो गई। हूरों ने अपनी हाथ से जनाबे सैयदा को लिबास व जेवर से आरास्ता किया और सवारी में बिठाया। जनाब सैयदा उस यहूदी के घर पहुंची तो आपके नूर से उसका मकान रोशन और खुशबू से महक उठा, और जितनी यहूदी औरतें थीं सब बेहोश हो गईं। आप उस हिजरे में तशरीफ फरमाई जिसमें दुल्हन बैठी थी। कुछ देर के बाद सब औरतों ने दुल्हन को देखा, मुर्दा पाया तो सब औरतों ने रोने पीटने लगी और हस्र बरपा हो गई। जनाबे सैयदा को यह माजरा देखकर बड़ी हैरत हुई। आपने जयनमाज बिछाकर नमाज पढ़ी और खुदा की बारगाह में अर्ज किया कि परवरदिगार, मैं तेरी कनीज खास और तेरे रसूल की बेटी हूँ, तू मेरी इज्जत रख ले और न ये लोग कहेंगे मेरे आने से दुल्हन मर गई। आपकी दुआ अभी खत्म न हुई थी कि दुल्हन जिंदा हो गई और कलमा पढ़ती हुई उठ कर बैठ गई और जनाब सैयदा से अर्ज किया कि आप बिनते रसूल हैं, मुझको अपना दीन बताइए। आपने उसको और 500 यहूदियों औरतों को मुसलमान किया। सबने आपकी बहुत इज्जत की और बड़ी शान व शौकत के साथ एक कनीज की रुखसत किया। यह मौजज़ा सैयदा का एक दूसरी तरह भी बयान किया जाता है, और वह यह कि किसी शहर में एक बादशाह रहता था। उसने एक रोज अपने वजीर से कहा कि सामाने शिकार तैयार करो। बात ही बात में सब सामान तैयार हो गया। बादशाह और वजीर की लड़कियों ने भी साथ चलने की दरख्वास्त की। बादशाह ने मंजूर कर लिया और चुनांचे यह दोनों लड़कियां भी हमराह हो गईं। बादशाह, वजीर और दोनों लड़कियां चलते चलते एक जंगल में गुजर हुआ। वहीं सबने क्याम किया और नाश्ता करने में मशगूल हो गए। एकाएक बहुत ही जोर की आंधी आई और एक दूसरे को खबर ही न रही। बादशाह और वजीर लश्कर से जुदा हो गए और दोनों लड़कियां उड़कर एक पहाड़ की चोटी पर जा रुकी। जब तूफान खत्म हुआ तो बादशाह का अपना सामान व लश्कर तो मिल गया, मगर दोनों लड़कियों का कुछ पता न चल सका। मजबूर होकर बादशाह और वजीर दोनों वापस आ गए। इत्तफाक से उसी रोज किसी दूसरे मुल्क का बादशाह उस जंगल में शिकार को गया था। वह पानी की तलाश में परेशान था। सिपाही इधर उधर पानी के तलाश में फिर रहे थे। अब दोनों लड़कियों का हाल सुनो। माँ बाप से छूटकर बादशाहजादी और वजीरजादी दोनों गले लगकर बहुत रोईं और रोते रोते बेहोश हो गईं। ख्वाब में देखा कि एक बीवी नकाब पोश तशरीफ लाई और फरमाती हैं कि तुम मन्नत मान लो कि अगर हम अपने माँ बाप से मिलेंगे तो जनाब सैयदा की कहानी सुनेंगे। दोनों लड़कियों को जब होश आया तो उन्होंने यह मन्नत मान ली थी। परवरदिगार आलम मसबब अला
शबाब है वह सिपाही जो पानी की तलाश में गया था। जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो देखता है कि दो लड़कियां बैठी रो रही हैं। उसने उनसे हालात दरियाफ्त किए कि तुम यहाँ कैसे आई। उन लड़कियों ने सारा वाकया उससे बयान किया। उस सिपाही ने उन लड़कियों को तसल्ली व तस्फी दी और कहा कि तुमको मैंने अपने साथ ले चलूं तो चलोगी। लड़कियां राजी हो गई। सिपाही ने बादशाह को खिदमत में हाजिर होकर उन लड़कियों का वाकया बयां किया। बादशाह ने फौरन अपने नौकरों को भेजकर लड़कियों को बुलवाया और वजीर ने उन लड़कियों को बड़े आराम से अपने घर में रख लिया। चंद रोज बाद जब लड़कियों के वालिदैन को खबर हुई कि फला बादशाह के यहाँ दोनों लड़कियां जिंदा सलामत हैं, तो उनको बड़ी खुशी हुई और उन्होंने उस बादशाह को शुक्रिया का खत लिखा और लड़कियों को भेज देने की ख्वाहिश की। इस बादशाह ने खत का जवाब दिया और लिखा कि अगर आप मुनासिब समझे तो इन लड़कियों की शादी मेरे लड़कों के साथ कर दें। उन लोगों ने मंजूर कर लिया और लड़कियां बादशाह के यहाँ से रुखसत होकर अपने माँ बाप से मिली और सबने खुदा का शुक्र अदा किया। मगर लड़कियां जनाब सैयदा की कहानी सुनना भूल गई। कुछ दिनों के बाद दोनों तरफ से शादियों के इंतजामात होने लगे और तारीखें मुकर्रर होकर दोनों का अकीदा हो गया और वह दोनों बड़ी धूमधाम से रुखसत होकर अपनी ससुराल पहुंच गए। इत्तफाक से जहेज का एक लोटा पानी से भरा हुआ दरवाजा पर छूट गया। एक सिपाही को हुक्म हुआ कि फौरन जाकर लोटा ले आए। सिपाही जब आया तो देखता है कि न वहाँ महल है, न वह तख्त है, न बादशाह है, न कुछ सामान है। सिर्फ एक मैदान है और लोटा वहाँ रखा हुआ है। सिपाही हैरत में था कि यह माजरा क्या है। बहरहाल सिपाही ने चाहा कि लोटा उठाएं और जब झुककर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया मगर वह फौरन ही एक काला सांप बन गया और उसने सिपाही को काटना चाहा। यह खौफजदा होकर पीछे हटा और भागकर अपने बादशाह के पास आया और सारा वाकया उससे बयान किया। यह तमाम बातें सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने लड़कियों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जादूगर हो, बतलाओ कि यह क्या माजरा है और तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं। वह लड़कियां हैरत ज़दा हो गई और कोई जवाब न दे सके। बादशाह ने उन लड़कियों को कैद कर दिया और कहा कि कल तुमको कत्ल करने के लिए जल्लाद के हवाले कर दिया जाएगा। कैद खाने में वजीरजादी ने शहजादी से कहा कि न मालूम हमसे कौन सी ऐसी खता हुई है कि हमको यह सजा मिली है कि कल कत्ल कर दिए जाएंगे। यह दोनों वजीरजादी और शहजादी ने मशगूल हुई और खुदा से दुआ करने लगी। रोते रोते उनकी आंख लग गई। ख्वाब में देखा कि वही नकाबपोश बीबी आई और फरमाती है कि तुमने
माना था कि जनाबे सैयदा की कहानी सुनूंगी, मगर तुमने न सुनी। उसी का अजाब है, अब तुम दोनों कहानी सुनो। लड़कियों ने कहा कि हम आप पर से कुर्बान जाएं, यह बतलाएं कि हम लोग कैद खाने में सिरनी वगैरह का इंतजाम कैसे करेंगे। आपने फरमाया कि सुबह को तुम्हारे आंचल से 2 पैसे गिरेंगे, उसी की सिरनी मंगवा लेना और कहानी सुनना। चुनांचा सुबह में ऐसा ही हुआ। लड़कियों ने 2 पैसे की सिरनी मंगवाकर कहानी सुनी और अपनी गलती का रो रो कर माफी मांगी। बादशाह ने सुबह जल्लादों को हुक्म दिया कि उन दोनों लड़कियों को कत्ल कर डालो। जब जल्लाद लड़कियों के पास आया तो उन्होंने उससे कहा कि हमारी तरफ से बादशाह के खिदमत में अर्ज करो कि वह पहले हमारी चंद बातें सुन ले, फिर कत्ल का हुक्म दे। जल्लाद जब यह पैगाम बादशाह को खिदमत में पहुंचाया तो वह खुद लड़कियों के पास आया और लड़कियों ने रो रो कर अर्ज किया कि गरीब पर जब हम लोग आंधी से उड़कर पहाड़ पर पहुंचे तो रोते रोते बेहोश हो गए थे। तो तब एक नकाब पोश बीबी आई थी और फरमाया था कि तुम जनाबे सैयदा की कहानी मान लो तो अपने वालिदैन से मिलोगी। हम दोनों ने यह मन्नत मान ली थी, मगर अपने वालिदैन से मिलने के बाद हम यह कहानी सुनना भूल गई थी। यह उसी का अजाब है। अब आप अपने सिपाही फिर भेजिए और हालात हमारे वालिदैन के दरियाफ्त करवाएं। बादशाह ने सिपाहियों को दोबारा उनके वालिदैन के मुल्क भेजा तो वहां बादशाह और उसका तख्त व ताज सब मौजूद था। सिपाहियों ने वापस आकर बादशाह से जब यह बयान किया तो उसको यकीन हो गया कि बेशक यही अताबे इलाही था और कुछ नहीं था। बादशाह खुश हो गया और लड़कियां कैद से आजाद हो गई। यह कहानी वह बरक़े पोश मअज़मा सोनारनी से कहकर गायब हो गई। सोनारनी अपने घर आई और देखा कि उन पड़ोसियों के घरों में आग लग गई जिन्होंने यह कहानी सुनने से इनकार कर दिया था। दुआ करो कि जिस तरह सदक़े में मोहम्मद अव्वल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोनारनी और उन लड़कियों के मुराद पूरी हुई, उसी तरह हर मोमिन, हर मोमिना, हर मुस्लिम, हर मुस्लिमा की भी हर मुराद बेतुफैल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पूरी हो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में हम नए वाक़े के साथ फिर मिलेंगे। जज़ाकल्लाह खैर इंशाअल्लाह।